طلباء و طالبات، میں شیخ سہیل احمد خلیل، PMC سیکنڈری اردو اسکول نمبر 19 ساورکنڈلا تھانہ، میں معاون مدرس کی حیثیت سے وہاں پہ درس اور تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ آج ہم 10ویں جماعت کے دوسرے سبق اپنے ہمسائے سے پڑھیں گے، جس کے مصنف ہے کنہیا لال کپور۔ اس سے پہلے کہ میں سبق کا آغاز کروں، آپ کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قرابت داری سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں جس طرح سے سلوک کرتے ہو، اپنے ہمسائے سے یعنی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اسلام دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے جو ہمیں ایسا درس دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ حقوق ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی مجھے یاد آتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور متعدد بار تاکید کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق انہوں نے اتنے بتا دیے کہ مجھے ایسا گمان ہوتا تھا جیسے کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ داری نہ دینی پڑے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کتنے حسن سلوک کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ نہیں تو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اتنی برائیاں پھیل چکی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہے وہ گندگی پھینک دیتے ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں اور زور زور سے ناچ گانے ڈھول بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب بڑا پیارا مذہب ہے، ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ ایک پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ اب شر سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اذر نہ پہنچائے۔ تو یہ ہمارے اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی میں کوئی بھی مذاہب کا ہو سکتا ہے، کسی بھی قوم و ملت کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان پڑوسی، اور پڑوسی سے مراد یہ بھی نہ نکالی جائے کہ صرف آپ کی دیوار سے جس کی دیوار لگی ہے یا آپ کے سامنے جو رہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کے شمال اور جنوب میں، مشرق اور مغرب کی جانب جہاں 40 گھر ہے وہاں تک کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ جب تم اپنے گھر پھل لے کے جاؤ تو کچھ پھل اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو، اور ہو سکے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو، کیونکہ اس کے ہمسائے کو اس کو دکھ پہنچے گا، تکلیف ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ہمسائے کا اتنا خیال رکھنے کو کہا گیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ آج دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر لوگ ہاتھوں میں بڑی بڑی تھیلیاں لے کر گھر آتے ہیں اور اپنے پڑوسی کی خیال نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم کچھ لے جاؤ تو اپنے پڑوسیوں کا بھی اس میں حق رکھو، تمہیں اسلام اس کی تربیت دیتا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک سبق ہے جو 10ویں جماعت کا دوسرا سبق ہے، اپنے ہمسائے سے، جو کنہیا لال کپور جو مصنف ہے اس کے، انہوں نے یہی سماج کی جو خرابی ہیں، برائی ہیں، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہمارے سماج میں آج سب سے زیادہ پھیلی ہوئی برائی ہے۔ انسان خود نمائی میں لگا ہوا ہے، وہ دکھاوے میں لگا ہے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے میں لگا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اسراف بھی کرتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ لباس جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے دوسرا نہ خریدا جائے۔ لیکن آج خود نمائی میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم نیچا دکھانے کے لیے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے احباب کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ مبالغہ، جھوٹ بولنا، بڑا چڑھا کے باتیں پیش کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں
झूठ बोलने को सख्ती से मना किया गया। ये एक गुनाह है इसकी वजह से फरिश्ते, उसकी बदबू की वजह से फरिश्ते एक मील दूर चले जाते, वो करीब नहीं आते, और ये गुनाहों की पहली सीढ़ी करार दिया गया है इसको। तो हमें इसराफ से बचना चाहिए, खुद नुमाई से बचना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने पड़ोसियों की हुकूक याद होना चाहिए, उनके साथ में हुस्न सुलूक के साथ पेश आए, उनके साथ में हमदर्दी के साथ पेश आए, उनके साथ में हमें खैर खवाई का मामला रखना चाहिए। आज इस माशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मसला, ये बुराई हमारे माशरे से ख़त्म हो जाएगी, और ये मुफलिसी, ये तंगदस्ती और ये झूठ बोलना, ये सब के सब खत्म हो जाएगा। हमारा मज़हब बड़ा प्यारा मज़हब है, और इसी सबक में मुसन्निफ ने बड़े ही प्यारे अंदाज में दो गपशप के बारे में बताया है कि ये लोग कैसे एक दूसरे को मरकूब करने में, एक दूसरे को झूठ बोलने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं ये सबक जो है अपने हमसाये से, जिसके मुसन्निफ है कन्हैया लाल कपूर है, इनके मुसन्निफ जो है कन्हैया लाल कपूर है, इनकी पैदाइश लाइल गांव में हुई 1910, 27 जून 1910 में लाइल गांव में इनकी पैदाइश है। लाइल गांव पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, और इनकी वफात 1980 में। इस सबक का आगाज करने से पहले मैं इस सबक का खुलासा कर दूं कि जिसमें कन्हैया लाल कपूर ने बड़ी खूबसूरत और बड़े ही दिलकश अंदाज में पूरी बातों को पेश किया है। बड़ा अच्छा ये सबक है, एक मज़ाहिया मजमून है जिसको उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। आप देखेंगे कि दो पड़ोसी है, और किस तरह से दो पड़ोसी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे खुद नुमाई करते हैं, इसराफ करते हैं, परेशान होते हैं। अब इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि दो गपशप है, और दोनों आपस में जो बातें करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरा जो भाई है वो जज है, तो दूसरा कहता है कि मेरा भाई मैजिस्ट्रेट का चपरासी है। हालांकि ये दोनों के भाई नहीं है, एक का भाई ना जज है और ना ही एक का भाई मैजिस्ट्रेट का चपरासी है, लेकिन एक दूसरे को सबक कर ले जाना, एक दूसरे पर एक दूसरे से झूठ बोलना, यही फितरत इंसान को परेशानी की तरफ मुब्तला कर देती है। तो हमें चाहिए कि झूठ का सहारा ना, लेकिन जैसे जैसे ये मजमून आगे बढ़ता जा रहा है उसमें हम देखते हैं कि मुसन्निफ और हमसाया आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में झूठ का सहारा ले रहे हैं। वो कहता है, मुसन्निफ कहते हैं कि मैं नैनीताल अपनी फैमिली को ले जाने वाला हूँ, तो दूसरी तरफ जो मुसन्निफ है वो कहता है कि मैं कोटा कमंड जाने वाला हूँ, जबकि दोनों भी सिर्फ एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। ना हमसाया नैनीताल गया, और ना ही मुसन्निफ अपने बीवी बच्चों को लेके वो कोटा कमंड जाते हैं, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं तो कभी मुसन्निफ ने इसमें कहा है कि दोनों बस एक दूसरे का काफिया तंग करने में लगे हैं, और दोनों एक दूसरे के डींगे मारने में लगे रहते हैं। होता है अक्सर, हमने देखा है कि लोग डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं, सिर्फ झूठी शान और शौकत के लिए, अपनी खुद नुमाई को दिखाने के लिए। तो इस सबक में आगे ऐसे ही होता है कि हमसाया जो होता है वो उसकी बीवी के कहने पे फ्रिज ले आता है, तो मुसन्निफ की बीवी भी फ्रिज लाने पे इसरार करती है, जिससे वो बड़ा उसको तकलीफ पहुंचती है। तो कुछ दिनों के बाद वो टेलीविजन ले आ जाता है। तो मुसन्निफ कहता है कि भाई अब बस भी करो, इतना अगर आप ये चीज़ें खरीदोगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलें पेश आ जाएगी, क्योंकि मैं एक मामूली हैसियत का इंसान हूँ, जिस तरह आप हो मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन आप जब भी चीज़ कोई खरीदते हैं तो मेरी बीवी फौरन वो जिद करने लगती है
کہ مجھے بھی یہی چیز چاہیے. آپ نے کچھ دنوں بعد پھر اس کو زیورات اور کچھ کپڑے کچھ لباس دلائے تو وہ بھی مجھ سے بزد ہو گئی اس بات کو لے کے کہ مجھے بھی کپڑے اور زیورات چاہیے. اور یہ بات یہی نہیں ٹھہرتی ہے، آگے چلتے چلتے پھر ان بیماریوں کے اندر بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. مصنف کی بیوی کہتی ہے کہ میری میری بیٹی کو 104 بخار ہے. تو وہی ہمسائے کی بیوی کیوں پیچھے رہے گی؟ اور اکثر ہوتا ہے عورتیں ایک دوسرے سے حسد جلن کرتی ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے منی کو تو 106 بخار تھا اور میں نے ذرا بھی ہمت نہیں ہاری اور بڑے بے خوف میں نے رہی اور بالکل بھی ڈاکٹر کو میں نے اطلاع نہیں کی. کتنی حماقت کی بات کرتے ہیں کہ صرف ایک دوسرے کو اوپر سبقت لے جانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور کوئی یہ حماقت کی بات ہے کہ 106 بخار 104 بخار ہو جائے اور کوئی ماں ہے جس کا دل میں تکلیف نہ پہنچے، لیکن کیونکہ یہ صرف جھوٹ کا سہارا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ایک دوسرے کو رعب جمانا ہے ایک دوسرے کو، اس کے لیے اس طرح باتیں. آگے چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتے ہیں کہ کھراٹے لینے کے اوپر بھی دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. ہمسایہ کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر جب کھراٹے لیتے ہیں تو 1 فرلانگ تک آواز اس کی سنائی دیتی ہے. کتنی مبالغہ بات ہے یہ کہ کہیں اتنی زور سے کوئی کھراٹے لیتا ہے، لیکن کیونکہ جھوٹ ہے 1 فرلانگ لیتے تو دوسری فوراً مصنفہ کا بیوی کہتی ہے کہ ہاں میرے شوہر جب سوتے ہیں اور کھراٹے لیتے ہیں تو سول اسپتال تک کی آواز جاتی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر ہم سے پوچھنے آتے ہیں کہ سب خیریت سے تو ہے. اب یہ تو رہی بات والدین کی. کیوں کہ والدین کو دیکھ کر بچے طریقے سیکھتے ہیں، طور طریقے سیکھتے ہیں. اور یہی مصنف اور ہمسائے کی ساتھ بھی ہوا کہ جیسے والدین کرتے ہیں ویسے ہی بچے بھی کرتے ہیں. بچوں نے بڑوں کی باتیں سنی تو وہ بھی ڈینگے مارنے لگے. اور اس میں ہمسائے کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد نے ایک بار کئی لیٹر تیل چوری کر لیا. تو اب مصنف کا بیٹا کیسے پیچھے رہے گا؟ وہ بھی کہنے لگا میرے والد نے اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے نکال دیے. یہ جب دونوں باتیں سن کر مصنف اور ہمسائے سنتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور آخر میں وہ تھک ہار کے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ بہت ہو چکا، ہم ایک دوسرے کو مرعوب کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہم اب تھک چکے ہیں، جبکہ دراصل میں نہ تم کوئی رئیس ہو نہ میں کوئی رئیس ہوں، نہ تم بھی ایک معمولی سے شخص ہو اور میں بھی ایک معمولی حیثیت کا شخص ہوں. تو چلو آؤ آج دوستی کر لیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی غربت کا بھی خیال کرتے ہوئے اور مفلسی اور تندرستی میں ہم اس میں پڑ گئے ہیں یہ دکھاوے کی وجہ سے. تو یہ پورے سبق کے اندر اس کو کنہیا لال کپور جی نے بڑے ہی مزاحیہ انداز میں اس کو پیش کیا ہے. یہ پورے سبق کا میں نے آپ کو سامنے ابھی خلاصہ پیش کیا ہے. اس میں ایک اخلاق کی بات بھی ہے کہ اسلام نے جس چیزوں سے ہمیں روکا تھا تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہم کو دیکھنے ملتی ہیں. ہمیں خود نمائی سے منع فرمایا، ہمیں اسراف سے منع فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا گیا. اور حسن سلوک، ہمدردی، یہ ہمیں سکھائی گئی. تو جو بھی انسان اسلامی طریقے سے چلے گا وہ کامیاب و کامران رہے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے سے نیچے والوں کو دیکھیں، نہ ہی کہ ہم سے جو برتر ہیں ان کو دیکھیں. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر صبر کریں، کیونکہ شکر کرنے والا شاکر ہے اور صبر کرنے والا صابر ہے، دونوں ہی جنت کے حقدار ہیں. اس لیے ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو آئیے آج ہم ایک ایسے ہی سبق جو ہے ایک مزاحیہ مضمون ہے یہ، جسے کنہیا لال کپور جی نے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑی ہی سلیس زبان میں طنزی انداز میں اس میں مزاح کی آمیزش پیدا کی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دو گپ شپ ہے وہ باتیں کرتے ہیں.
देखिए सबक आपके सामने है अपने हमसाये से। इसे मुसन्निफ है कन्हैया लाल कपूर। पहली बात, देखिए जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेकार में से अपना वक्त ज़ाया करते हैं और एक दूसरे को मरूब करने के लिए, एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए और अपनी झूठी शान और शौकत बताने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इस सबक में मुसन्निफ ने यही बताने की कोशिश की। पहली बात, एक मर्तबा दो गपबाज बैठे हुए अपने खानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल है कि जिसमें बेक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते। बेक वक्त यानी एक ही वक्त में। आप देखेंगे बेक वक्त जो लिखा हुआ है, बेक वक्त जो लिखा हुआ है, इसके मानी है एक वक्त। अब ये इतना बड़ा अस्तबल सुनकर दूसरे गपबाज पे सीने पे सांप लौट जाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा झूठ, ठीक है। दूसरा फौरन कहता है, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। देखिए कितना झूठ का सहारा लिया गया और मुबालगा आराई से काम लिया गया। बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि इतना बड़ा बांस, तो जब चाहते बादलों को हिला देते, बारिश बरसा लेते। पहला गप्पी ने पूछा, क्योंकि अब उसे भी गुस्सा आ जाता होगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो कहता है, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरा गब्बास ने कहा, और कहाँ रखते, तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते। देखिए जो चंद जबान होते हैं, जो एक दूसरे पे सबकत ले जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, झूठ से, धोखे से, फरेब से, वो इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ भी दो गब्बास इस तरह से बातें कर रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा अस्तबल था, तो वो कहता है कि मेरे नाना के पास इतना बड़ा बांस था। तो ये सब झूठी बात है। आगे देखते हैं, बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी भगाड़ते हैं। शेखी भगाड़ना ये मुहावरा है। शेखी भगाना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। शेखी भगाड़ना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अपनी अहमियत जताने के लिए और अपने साथ के तलबा को अहमियत जताने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शेखी बखाना कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हैं और धोखा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मुबालगा आराई यानी बढ़ा चढ़ाकर बात को करना, जिसे अक्ल तस्लीम ना करे, उसे कहते हैं। कन्हैयालाल कपूर ने झील के मजमून में उसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। अब देखते हैं जान पहचान में। कन्हैयालाल कपूर 27 जून 1910 को जिला लाइलपुर में पैदा हो गए। जिला लाइलपुर पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, जब आजादी से पहले की बात कही। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में उन्हें प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज किया गया। फाइज करना यानी रखा गया, और यही 1980 में उनकी वफात हुई। तंज़ो मिज़ा में जरायत और बेबाकी कन्हैयालाल कपूर की खास पहचान है। तंज के मानी होते हैं ताना और मिज़ा के मानी होते हैं मजा। यानी तंज के जरिए से किसी बात को, समाज की किसी खराब बुराई को तंज के जरिए से और उसमें मिज़ा पैदा करके पेश किया जाता है कि क़ारीन को पढ़ने में उसको आसानी हो और उसको नसीहत भी मिले कि हमें माशरे में कैसा रहना है
اور اسے لطف بھی آئے، اس کا خیال رکھا گیا۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویر پیش کرتے ہیں، یعنی جو اونچ نیچ ہے، غریب امیر ہے، کالا گورا ہے، ہر شخص ایک دوسرے پہ سبق کرتے جاتے ہیں، اس کی بھی انہوں نے بارے میں سماجی برائی کے بارے میں پیش کیا۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ طنز یعنی تانا، اور احتجاج کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا۔ احتجاج کے معنی ہوتے ہیں بحث کے، یعنی کسی برائی کے خلاف کہنا، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نوک نشتر، بالوں پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ دیکھیے بچوں، آپ کو کبھی کبھی سوال اس طرح سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے ویب خاکے کے ذریعے سے کہ کنہیا لال کپور کی مزاحیہ، جو انہوں نے طنزیہ مزاحیہ خاکے لکھے وہ کون کون سے ہیں، تو آپ کو یہ چاروں بھی ان کے مزاحیہ خاکے یاد رکھیں گے۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا۔ اب ان کا انداز دیکھیے کنہیا لال کپور کا، کتنی سلیس زبان اور سادی زبان میں انہوں نے یہ مزاحیہ مضمون پیش کیا ہے، اور شروعات اس کی کرتے ہیں۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لے۔ دیکھیے پہلے ہی جملے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی نوک جھوک ہوئی ہے ان ہمسایوں کے بیچ میں جس کی وجہ سے اب وہ تھک چکے ہیں اور اب وہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہی جملے میں ہمیں سبق کے بارے میں کہ اس میں کیا مواد ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے کہ آؤ میاں سمجھوتا کر لے۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ رعب جمانا چونکہ شان و شوکت دکھانا۔ شان و شوکت دکھانا، اور حرکتیں، حرکت کی جمع ہے، حرکت حرکت کی جمع حرکتیں، جنہیں فضول ہی نہیں، فضول کے معنی ہوتے ہیں بیکار، فضول ہی نہیں مزے کا خیز کہا جا سکتا ہے۔ مزے کا خیز جس پر ہنسی آئے، مزے کا خیز کے معنی ہوتے ہیں جس پر ہنسی آئے۔ مزے کا خیز جس پر ہنسی آئے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے؟ مرعوب کرنا یعنی رعب جمانا، یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کرے۔ اب عاقبت کے معنی ہوتے ہیں آخرت کے۔ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں۔ رئیس کے معنی ہوتے ہیں مالدار، دولت مند، اور ابن رئیس، ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا۔ نہ میں مالدار ہوں، نہ ہی میں کسی مالدار کا بیٹا ہوں، بلکہ ایک معمولی تاجر ہوں، اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے، دیکھیے یہاں پر جو جملے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مصنف کیا کہتا ہے۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے،
यानी कौन? मुसन्निफ कह रहा है हमसाए से कि तुम्हारा भाई अगर दिल्ली में मजिस्ट्रेट है तो मैं तुम्हें मतला करता हूँ। मतला करना यानी खबरदार करना कि मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर खुदनुमाई कर रहे हैं, रौब जमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारा भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा कोई भाई ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का एक लौता बेटा हूं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ और हमसाया दोनों एक दूसरे पर रौब जमाने में झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। जहां वो कहते हैं कि हम एक मामूली से लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर रौब जमाते हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। कहते हैं कि हमसाया जो तेरा भाई वो मजिस्ट्रेट है और मेरा जो भाई है वो इलाहाबाद कोर्ट में जज है। हालांकि जो हमसाया है उसका भाई मजिस्ट्रेट का चपरासी है और दर हकीकत में मुसन्निफ का कोई भाई नहीं है, वो अपने वालिदैन के एक लौते एक बेटे हैं। 2 साल हुए तुमने कहा था मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था मैं भी माह अहल वयाल ओटा कमन जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी वो दोनों एक दूसरे के सबक किस तरह से जाते हैं कि हमसाया कहता है कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ। नैनीताल एक बड़ा ही सेहत अफजा मकाम है और ये उत्तराखंड में वाक़ है। तो मुसन्निफ भी कहते हैं कि मैं अपने माह अहल वयाल के साथ ओटा कमन जा रहा हूँ। माह यानी 7, अहल वयाल यानी बीवी बच्चों के साथ, ओटा कमन आज जो तमिलनाडु में ऊटी जो शहर का नाम है, जो बड़ा ही सेहत अफजा मकाम है, जहाँ पे अक्सर लोग जाया करते हैं घूमने फिरने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ये उस जगह का कदीम नाम है ओटा कमन। लेकिन तुम नैनीताल गए और नाम है ओटा कमन। तुमने वहां ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि यकलख्त के मानी होते हैं अचानक। यकलख्त के मानी होते हैं अचानक एकदम। तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। मैंने ओटा कमन न जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतजाम करना है। लुत्फ यह है कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी बड़ी चंगी। देखिए यहाँ पर भी झूठ का सहारा लिया गया और एक दूसरे पे सिर्फ एक रौब जमाने के लिए, एक झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए कहा गया कि मैं इस बार अपने बीवी बच्चों को नैनीताल ले जा रहा हूँ, तो वही ओटा कमन ले जा रहा हूँ, जबकि दोनों कहीं नहीं जाते और ना ही उसकी बीवी की तबीयत खराब है, वो बिल्कुल सेहत व तंदुरुस्त है। और मुसन्निफ ने अपने साले की शादी की जो बात कही है उन्होंने, वो भी ऐसे ही है। तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी सगाई तक नहीं हुई। देखिए इस तरह से एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है जब कोई इंसान किसी बारे में झूठ बोलेगा और दर हकीकत वो बात हुई ही नहीं है तो वो बिल्कुल झूठ है। तो उसके लिए फिर बाद में फिर दूसरा बहाना करना, यानी एक के बाद दिगरे झूठ बोलते जाना, सिर्फ झूठी शान और शौकत के लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखते हैं, काफी अच्छी नोकझोंक है इनकी। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई। सर हो गई के मानी होते हैं जिद करना। ये मुहावरा है। सर हो गई जिद करना, सर होना जिद करना। अक्सर इसको हम जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। किस तरह से करते हैं? सर हो गई यानी जिद करने के मानी होते हैं। अक्सर छोटे बच्चे खिलौने की दुकान देखकर अपने वालिदैन से जिद करने लगते हैं। देखिए बच्चों, ये मुहावरे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं तो ये आपको मुहावरे तलाश करके लिए आएगी और इस तरह से आपसे
पूछा भी जाएगा कि इसको जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे घर में फ्रिज जरूर होना चाहिए, चुनांचा ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविजन सेट खरीदना चाहते हो, खुदा के लिए ऐसा ना करना। देखिए कितने आजिजी से अब मुसन्निफ कहता है, खुदा के लिए अब ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, और अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवालिया ही पीट जाएगा। मैं जानता हूं कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है। यानी दोनों बखूबी जानते हैं कि दोनों भी मामूली हैसियत के लोग हैं, लेकिन एक स्टेटस जो आज एक बीमारी चल रही है हमारे समाज में, एक स्टेटस मेंटेन करने की, ये उसी की उजागर किया है मुसन्निफ ने कि जिस तरीके से हमसाया फ्रिज ले आता है तो मुसन्निफ की बीवी भी जिद करती है तो वो भी फ्रिज लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे उन्हें मालूम होता है कि हमसाये ने टेलीविजन ले रहा है तो बेचारे डर जाते हैं और कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते अब ऐसा ना कर, वरना ये जो फ्रिज की किस्तें में भर भर के थक गया हूं, अब टेलीविजन की किस्तें भरूंगा तो मेरा तो दिवालिया पिट जाएगा। अब यहां पर जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दिवालिया पिट जाना, दिवालिया पिट जाना के ये भी क्या है, एक मुहावरा है, दिवालिया पिट जाना। दिवालिया पिट जाना, दिवालिया पिट जाना यानी बर्बाद हो जाना। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की वजह से काफी लोगों कारोबारियों का नुकसान हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो आप इसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिवालिया पिट जाना यानी बर्बाद हो जाना, नुकसान उठाना। तो हम जुमले में इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि लॉकडाउन होने की वजह से कारोबारियों का दिवालिया पिट गया। मेरे बच्चों इसे अच्छे से याद रखो, ये जुमलों में इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए, क्योंकि इस पे भी आपको आधा या 1 मार्क्स के लिए आता है। इसके आगे इसमें एक लफ्ज है कम ओबेश। कम ओबेश के जो लफ्ज लिखा हुआ है आप देखेंगे, यहां वाव आप देखेंगे, ये दो लफ्ज को जोड़ने वाला वाव, तो हम पहले भी पढ़ चुके होंगे आप नहुं जमात में, दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को वावे अत्फ कहते हैं। ये भी सवाल आपको आता है एक मार्क्स के लिए, ये भी आपको पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को वावे अत्फ कहते हैं। ठीक है, अब बकौल शायर, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। ये पूरी जो ये मज़ाहिया मजमून है, इस शेर में उसको समूह दिया गया कि मुसन्निफ ये कहता है कि शायर इसमें कहना चाहता है कि मुझे मालूम है तुम जो मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हारा भी मेरी तरह हाल है, तुम भी मेरी तरह से परेशान हो, और हम दोनों एक ही नाव यानी एक ही कश्ती के सवार है, हम दोनों का एक जैसा हाल है। इस शेर में उसे बयान करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदे कभी इस बात का एतराफ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। यानी एक ही नाव में सवार है यानी हम दोनों भी एक ही जैसी परेशानियों में मुब्तला है। खुले बंदे लफ्जों में यहाँ पे लिखा है, ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदे, खुले बंदे नहीं जाहिरी तौर पर, तुम जाहिरी तौर पर तो नहीं कहोगे मुझे कि तुम भी मेरे जैसे, तुम कभी एतराफ नहीं करोगे, कबूल नहीं करोगे इस बात को कि हम दोनों एक ही तरह के परेशानियों में मुब्तला है। कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। अब देखिए यहाँ फिर से आया है काफिया तंग करना, ये भी एक मुहावरा है, काफिया तंग करना।
जैसे कि भी आप इसको भी आपको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए आएगा, काफिया तंग करना। जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि त्योहारों का मौसम है, तो इसमें इसे जुमलों में बच्चे अपने वालिदैन से कपड़े खरीदने में, यानी कुछ भी लिबास खरीदने में या कुछ चीज़ें खरीदने के लिए उनको परेशान करेंगे। तो इसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? त्योहारों के मौके पर अक्सर बच्चे सामान खरीदने के लिए अपने वालिदैन का काफिया तंग कर देते हैं। इसी तरह आगे देखते हैं, उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बघाड़ती है। शेखी बघाड़ना यानी बड़ी बड़ी बात करना, ये भी मुहावरा है, शेखी बघाड़ना। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे अपनी अहमियत जताने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसको भी जुमले में आप इस्तेमाल करेंगे कि अक्सर बच्चे स्कूल में अपनी अहमियत बताने के लिए या अपनी अहमियत जताने के लिए अपनी शेखी बघाड़ते हैं। आप इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साड़ी 500 में आई है। अब इसमें सिफत अददी का इस्तेमाल हुआ है 500 की। आपको ये भी आता है, हम इंशाअल्लाह कवायद में पढ़ेंगे कि ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 रुपए का है। तो मेरी बीवी के सीने पे सांप लौटने लगते हैं। सीने पे सांप लौटना यानी बेचैन हो जाना, हसद के मारे बेचैन होना। इसके मानी क्या है? सीने पे सांप लौटना। ये भी क्या है? एक मुहावरा है। सीने पर सांप का लौटना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जो हमसाए होते हैं या कोई दोस्त अकारिब होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, तो अपने रिश्तेदार की तरक्की देखकर उनको जलन हसद महसूस होती है। ये वही है कि सीने पे सांप लौटना। इसको हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे कि रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की तरक्की देखकर उनके सीनों पे सांप लौट जाते हैं। या हमारे कभी कभी दोस्त होते हैं, दोस्तों में भी ऐसे ही होता है कि जब एक दोस्त की तरक्की हो जाए तो दूसरा दोस्त की तरक्की देखकर हसद और जलन करने लगता है। ये उसी को बताया गया है। इसमें काफी जगह मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है और बड़े ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में पूरे सबक को या पूरी बात को बयान करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती कि उससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी। अक्सर ये देखा गया है कि औरतों में यह खसलत होती है कि अगर उसकी कोई पड़ोसी ने या रिश्तेदारों ने किसी ने अगर कोई चीज लाती है, जेवरात खरीद लिए या कपड़े ले लिए, तो वो बीवी भी अपने शोहर को जाके तंग करती है कि मुझे भी उसके जैसे जेवरात और कीमती लिबास चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाती। क्योंकि ये फितरत इंसानी है कि हर इंसान दूसरे के जैसा बनना चाहता है, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारे, वरना सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं हो। आगे देखते हैं, गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदो किया। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम अज़ कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाए की नजर से गिर जाओगी। अब इसमें भी देखिए, जन्मदिन पे भी वो आपस में एक दूसरे से मुकाबला आराई में लगे हुए हैं कि जो मुसन्निफ है उसकी बीवी और हमसाए की, वो कहती है कि जन्मदिन पर मैं 25 औरतों को मदो किया। मदो करना यानी दावत देना। अब मेरी बीवी यानी मुसन्निफ की बीवी क्या कहती है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि जब मेरे बच्चे का जन्मदिन हो तो मैं भी उसके वक्त 50 औरतों को दावत दूं। देखिए, ये हमेशा इस तरह से औरतों में थोड़ी हसद जलन सी रहती है और वो इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ती, चाहे उसके लिए कितनी भी मुफलिसी की तरफ चले जाए, तंगदस्ती हो जाए, परेशानियां बढ़ जाए, लेकिन वो उस बातों से, उन हरकतों से बाज नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हमसाए के साथ हुस्न सलूक के साथ रहें,
نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کرے اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ اس لیے اسلام میں ہے کہ آپ لوگ جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے اس پہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ رہے، شکر کے ساتھ رہے، اللہ کا شکر و احسان مانے کہ اللہ نے آپ کو اچھی زندگی عطا کی۔ اب باقی کا جو سبق ہے انشاءاللہ اگلے اس میں ہم لوگ پیریڈ میں کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔